हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डायनेमिक ऑफ मशीन का हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे। पार्ट 6 में हम देखेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी? सबसे पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इन अ फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील में मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस जो है दैट इज माय फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लक्चुएट होना, दिस मीन्स मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम। यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इन अ फ्लाई व्हील, एनर्जी ऑफ अ फ्लाई व्हील। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी is equal to E1 minus E2 where E1 is the maximum energy which is equal to 1 by 2 I omega 1 square. Omega is the angular velocity, ठीक है, at maximum point पे। ठीक है, और E2 is the minimum energy which is equal to 1 by 2 I omega square. Omega 2 square means angular velocity at minimum stage पे। ठीक है, where I is the mass moment of inertia which is equal to mk square. M is the mass of a body and K is the radius of gyration. ठीक है, clear? Now explanation ये देखते हैं। Let us discuss if the mass of flywheel increases, inertia will be also increases. For this formula I is equal to mk square. ठीक है, अगर मास बढ़ रहा है बॉडी का तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू inertia. Therefore, if the mass of the flywheel increases, inertia will also be increases. Okay, clear? Now next, and if also radius of gyration will be increases. कैसे radius of gyration कैसे increase है? देखो, I directly proportional to m, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Here in this formula I is equal to mk square where I is directly proportional to m and I is also directly proportional to k square. It is radius of gyration. So if the mass of the flywheel increases, inertia will be also increases. If inertia will be increases, then radius of gyration also increases. Here also radius of the gyration will increases. Due to this E, energy will increases. अब due to this how energy will increases? Here I directly proportional to E1 है, हमारा यहाँ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। अगर इनर्शिया बढ़ रहा है तो हमारा क्या एनर्जी भी बढ़ रही है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू दिस एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। नाउ फ्लाईव्हील that is flywheel contain maximum amount of energy. If flywheel contain maximum amount of energy, this means E is equal to 1 by 2 I omega square. Then omega is the angular velocity of the flywheel also increases. Therefore speed of flywheel more. Means यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे काम कर रहा है इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ओके, मास बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। If moment of inertia is more, then radius of gyration also more because I directly proportional to k. Okay, now if if inertia will increases from this formula, if inertia will increases, energy will also increases. If energy will increases, then omega will be increases. Due to this omega increases means speed will be increases. If mass of the flywheel increase, therefore speed of the flywheel also increase. Okay, so this is the concept of fluctuation of energy. Now second one is coefficient of fluctuation of energy. अब ये क्या है coefficient of fluctuation of energy? जो हमारा fluctuation of energy था उससे कुछ coefficient पार्ट आ जाएगा जिसे हम नाम दे रहे हैं coefficient of fluctuation of energy. इसका definition है it may be defined as the ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle. क्या है? It is a ratio of maximum fluctuation of energy divided upon work done per cycle. ठीक है, और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग, और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को हम CE से डिनोट करते हैं। और CE हमारा क्या है? CE हमारा है E1 minus E2. E1 minus E2 is the maximum fluctuation of energy or the fluctuation of energy divided upon work done per cycle. Okay, where first one is three condition here. Now first condition is work done per cycle. Work done per cycle अगर आप निकालना चाहोगे, देखो E1
मैक्सिमम एनर्जी तो आप निकाल लोगे और मिनिमम एनर्जी भी निकाल लोगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें नीचे वर्क डन पर साइकिल चाहिए। तो वर्क डन पर साइकिल कैसे निकलेगा, तो वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू टी मीन इंटू थीटा, वेयर टी मीन इज द मीन टॉर्क और थीटा इज द एंगल टर्न इन वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन में जितना एंगल हमारा क्रैंक टर्न हो रहा है, फ्लाईव्हील टर्न हो रहा है, दिस इज थीटा। where 2 pi or 4 pi, theta is considered as 2 pi and 4 pi, where 2 pi is for steam engine and 2 stroke IC engine और 4 pi जो हम लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड है। नाउ चलो थीटा तो निकल गया, वर्क डन निकालने के लिए हमें टी मीन चाहिए। अब टी मीन कैसे निकलेगा, टी मीन का फॉर्मूला होता है P इंटू 60/2 पाई n, वेयर P इज द पावर ट्रांसमिटेड इन वाट। ओके, 2 पाई हमें पता ही है, n क्या है हमारा, स्पीड इन आरपीएम। तो हम पुट करेंगे तो इसे, और देखो 2 पाई n/60 को हम क्या लिख सकते हैं, P/ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2 पाई n/60। तो ये लिख सकते हैं टी मीन को। नाउ वर्क डन पर साइकिल ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू 60/n। तो ये इस देखो एक थीटा हमें पता है और टी मीन का फॉर्मूला हम ये लगाकर हम वर्क डन निकाल लिया। और एक तरीका और है वर्क डन निकालने का, वो कौन सा तरीका है, वो तरीका हमारा ये वर्क डन पर साइकिल ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू 60/n, वेयर n इज द नंबर ऑफ राइटिंग स्ट्रोक पर मिनट, सॉरी इट्स नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, स्मॉल n दिस। अब क्या स्मॉल n को दो कंडीशन में लेना है, n अगर आप ले रहे हो दिस मीन्स स्टीम इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन IC इंजन के लिए यूज़ कर रहे हो, और n/2 अगर ले रहे हो दिस इज मीन्स 4 स्ट्रोक IC इंजन के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये दो तरीका है हमारा वर्क डन को कैलकुलेट करने का। तो इससे हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको डाउट हो तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के नीचे मेल आईडी दी हुई है, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।